You can start, ma'am. Good evening, students. In the previous classes, what we have done, we have started with the Sales of Goods Act 1930. So we have all discussed about what is Sales of Goods Act, what is basically its different definitions, what is sale, what is agreement to sell, what are its essential components. We all have discussed that, right? So in today's class, we will do a part of our Sales of Goods Act 1930, that is conditions and warranties. Okay. So let's start it with this sales of in Sales of Goods Act we will do conditions and warranties. बेसिकली हम जब कोई सामान खरीदते हैं, जब हम कहीं परचेज करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी शॉप में गए टू परचेज अ फर्नीचर, तो हम फॉर एग्जांपल फर्नीचर में भी हम बेड खरीदने गए, ठीक है, तो हमने या फिर सोफा खरीदने गए, तो हमने दुकानदार को बोला, शॉपकीपर को बोला कि हमें एक अच्छी सी सोफा दिखाइए, ठीक है, या फिर जो सेलर है उसने ऐसे बोला कि ये सोफा बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, इसका जो मटेरियल है वो बहुत ही अच्छा है, उम्दा क्वालिटी का है, फॉरेन क्वालिटी का है, इसमें जो फोम भरे हुए हैं ये उम्दा क्वालिटी का है। ऐसे बहुत सारे बातचीत होता है, राइट, व्हेन वी कम अक्रॉस और वी वांट टू परचेज अ प्रोडक्ट from a seller, right? So these terms, yeah, these things what we say sometimes become an integral part of our contract of sale, ठीक है, ये कुछ बातें कुछ अगर वो एक पर्पसफुल बातें हैं जो कि रीजन है फॉर द परचेस, ऐसी कोई बातें या उससे रिलेटेड बातें फॉर्म्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। When a contract of sale is entered into during the stage of negotiation, a trader makes a number of statements and representations related to quality of goods, पर्पसेस एक्सेट्रा, ठीक है। हम जब बात करते हैं, हम कुछ परचेज करने जाते हैं या फिर सेलर भी बताते हैं कि ये इस गुड्स का क्वालिटी बहुत अच्छा है, हम भी बताते हैं कि हमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें ये खरीदना है, तो इन्हीं सारे कंडीशंस रिप्रेजेंटेशंस मेक अ फॉर्म पार्ट ऑफ स्टिपुलेशन। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द स्टेटमेंट्स और स्टिपुलेशन cannot be of equal importance, ठीक है। हम जो भी बातचीत करते हैं सेलर के साथ, देयर इज अ वेरी जो भी बातचीत होती है बिटवीन अ सेलर एंड बायर, उन दोनों सारे बातों में, उन स्टेटमेंट्स में, उन स्टिपुलेशंस में, सब में इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होता है। कुछ इतने पर्पसफुल बातें होती है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का इंटीग्रल पार्ट बन जाती है, ठीक है। तो व्हाट आर दीज स्टेटमेंट्स, व्हाट आर दैट, वी विल डिस्कस। Some of the stipulations make major terms of the contract which go to the root of the transaction and which may be considered as substantial failure to perform the contract, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी दुकान में गए, फॉर एग्जाम्पल इन ऑटोमोबाइल शॉप, ठीक है, टू परचेज अ कार एंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस दैट इज टू ट्रैवल इन अ माउंटेन एरिया, ठीक है। अब मैंने जो शॉपकीपर है, जो सेलर है, उनको मैंने बोला कि मुझे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए चाहिए, दैट इज फॉर ट्रैवलिंग इन अ हिली रीजन, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक ऐसी कार दे दी, ठीक है, जो कि मुझे भी नहीं पता था कि वो हिली रीजन के लिए सूटेबल नहीं है। बट लेटर ऑन if I found that it is not suitable, then it will become my primary condition, ठीक है। जब मैंने उनको बताया था to perform that, to have that specific purpose, that becomes my condition. So the major terms of vital significance are called conditions and the minor terms of lesser significance are called warranties, ठीक है। This is the definition जो कि एक vital significance है। When we are talking, we have some statements, we have some stipulations with the buyer and seller, then जिसकी importance जो कि vital significance रहते हैं, that part becomes a part of conditions and the lesser significance one becomes the warranties, ठीक है। Now Sales of Contract Act, ये conditions and warranties को define किया गया है। What is a stipulation? Stipulation is basically the representation forming a part of contract of sale, ठीक है। जो भी representation आप कर रहे हैं, that is stipulation. So a stipulation in a contract of sale with reference to goods which are subject, there may be a condition or a warranty. This is according to section 12 of subsection A. कोई ऐसा स्टिपुलेशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के रेफरेंस में है टू दैट गुड्स व्हिच यू आर परचेसिंग, व्हिच आर सब्जेक्ट टू योर परचेस,
एंड वो कंडीशन भी हो सकता है, वारंटी भी हो सकता है. सो स्टिपुलेशन कैन बी कंडीशन भी और वारंटी भी. और कंडीशन क्या होता है? कंडीशन एक ऐसा स्टिपुलेशन है जो कि एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिप्यूडिएटेड. मतलब कंडीशन वो ऐसा स्टिपुलेशन है, वो ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, वो ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बहुत एसेंशियल है, विच हैज द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एंड उसका अगर ब्रीच होगा तो दिस कैन गिव द अग्रीव्ड पार्टी द राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिप्यूडिएटेड. रिप्यूडिएटेड मतलब टू रिफ्यूज दैट एक्ट. ओके. Thus, condition is a stipulation which forms the very basis of the contract, breach of which will entitle the aggrieved party to treat the contract as discharged. ठीक है? Is that understandable? अब example ये है कि जैसे मैं एक दुकानदार के पास गई, मैंने उनको बोला कि मुझे एक स्विट्जरलैंड मेड वॉच चाहिए. ठीक है? तो डीलर ने कहा कि ये बहुत अच्छी वॉच है, आप ये ले लीजिए. ठीक है? लेकिन बाद में मैंने जब परचेस करके घर पर गई तो मैंने देखा कि ये मेड इन चाइना वाली वॉच है. तो दिस इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन. माय मेन पर्पस, माय मेन कंडीशन क्या था कि स्विट्जरलैंड मेड वॉच होना चाहिए, ऐसा वॉच जो कि स्विट्जरलैंड में बनाया गया है. सो अगर शॉपकीपर ने, अगर डीलर ने, सेलर ने अगर मुझे दूसरे कंट्री का वॉच बेचा है, सो दिस इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन. ठीक है? And the buyer's stipulation is essential to the main purpose of the contract. ठीक है? हुआ है कि this is of Baldry versus Marshall, where जो B है वो M के पास गए. M एक मोटर कार डीलर है और उन्होंने कहा कि मुझे एक कंफर्टेबल कार चाहिए सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस. ठीक है? मैं टूर कर सकूँ, ऐसे पर्पस के लिए मुझे कार चाहिए. तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक्सप्लिसिटली उन्होंने बताया है, उन्होंने खुद से इन स्पोकन टर्म्स में बताया है कि उनका पर्पस क्या है उस कार को खरीदने का. ठीक है? लेकिन एम ने क्या किया, जो डीलर है शोरूम के, उन्होंने बुगाटी कार दे दी विच वॉज नॉट सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस. ठीक है? सो बी ने क्या किया, अब जब वो घूम कर आया उसको पता चला कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस. ठीक है? सो नाउ ही हैज द राइट टू रिजेक्ट द कार एंड रिकवर द प्राइस. So, the suitability of car for touring purpose was a condition of the contract, non-fulfillment of which defeated the very purpose of contract. As such, B was entitled to reject the car and get back the price of the car. ठीक है? So, this is about the condition. ठीक है? अब warranty क्या होता है? Warranty एक ऐसा stipulation है जो कि जो मेन पर्पस से अटैच्ड है. ठीक है? दैट इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस. वो मेन पर्पस नहीं है, वो वाइटल नहीं है, बट वाइटल से भी थोड़ा कम है. ठीक है? A breach is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to claim for damages but not the right to reject the goods and treat the contract as repudiated. अगर breach of condition होता है तब the aggrieved party के पास क्या राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूटेटेड कर सकते हैं. बट व्हेन अ वारंटी हैज बीन ब्रीच्ड, ठीक है, जब एक वारंटी का ब्रीच होता है तब द अग्रीड पार्टी कैन ओनली क्लेम द डैमेजेस एंड ही कैन नॉट डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी. ठीक है? सो दिस इज अबाउट वारंटी. अब आते हैं हम एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज क्या होते हैं. ठीक है? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशंस एंड एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड वारंटीज क्या होते हैं. एक्सप्रेस कंडीशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने समझाया था आपको कि जो कि आप बाय रिटन बाय स्पोकन आप बता रहे हैं, सो दैट इज एक्सप्रेस. सिमिलरली यहाँ पर एक्सप्रेस कंडीशन वही कंडीशन है जिसका जो आपने सेलर को बताया है कि दिस इज द पर्पस ऑफ माय परचेसिंग. यू हैव एक्सप्रेसिवली सेड दैट बाय राइटिंग और थ्रू ओरल यू हैव सेड दैट. बट इम्प्लाइड क्या होता है? दैट इज थ्रू जेस्चर. ओके? सो जेस्चर के थ्रू कैसे या फिर कौन से हिडन वे के थ्रू कंडीशंस हो सकते हैं, वी विल स्टडी दैट. इम्प्लाइड कंडीशंस आर
those which are automatically incorporated by the law in the contract. जो कि लॉ ने बताया है, जो लॉ के अंतर्गत है, that is automatically incorporated, those are implied conditions. And similarly express warranties वही होते हैं जो कि आप स्पोकनली आप ओरल और रिटन वे में बताते हैं बिटवीन द टू पार्टीज, दैट इज द एक्सप्रेस वारंटीज. एक्सप्रेस वारंटीज का एग्जांपल है जैसे आपने किसी कंपनी का फैन खरीदा, ठीक है, या फिर एसी खरीदा, तो साथ में एक वारंटी कार्ड दिया जाता है. सो दैट इज अ एक्सप्रेस वारंटी. ओके, बट इट अगर कोई कुछ लॉ ने ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट किया है, सो दैट इज इम्प्लाइड वारंटी. ओके, सो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज इम्प्लाइड कंडीशंस ऑफ वारंटीज. अब इम्प्लाइड कंडीशंस ऑफ वारंटीज पढ़ने से पहले वो तभी खत्म हो सकता है, इम्प्लाइड कंडीशंस तभी खत्म हो सकता है जब आपने एक्सप्रेसिवली बातचीत कर ली होगी अपने दोनों पार्टीज के बीच में, या फिर बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग्स यू हैव एक्सप्रेसिवली सेड दैट ये जो इम्प्लाइड कंडीशंस है जो कि लॉ की तरफ से वो मैं नहीं मानता, वो आपने पहले ही बता दी, तो फिर ये इम्प्लाइड कंडीशंस लागू नहीं होंगे. ठीक है, सो दीज आर सम of the ways through which implied conditions in a contract of sale may be cancelled or valid. Okay? So now what are the ways of implied conditions? The various implied conditions incorporated by the law into the contract contained in sections 14 to 17. क्या क्या है? First is condition as to title. This is come under section 14 of subsection A. अब आप जिससे भी सामान खरीद रहे हैं, आप इस गुड फेथ में खरीद रहे हैं कि वो जो गुड का पोजीशन है, टाइटल है, मैं उसी पर्सन से खरीद रहा हूँ. ठीक है, मतलब इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द इम्प्लाइड कंडीशन इज दैट द सेलर हैज राइट टू सेल द गुड्स एंड ही विल हैव द राइट टू सेल द गुड्स इन केस ऑफ एन अग्रीमेंट टू सेल एट द टाइम व्हेन प्रॉपर्टी इज टू पास. इसका मतलब ये है कि एज अ बायर ये तो इम्प्लाइड कंडीशन है ही है कि मैं जिससे खरीद रहा हूँ सामान, उसी के पास उस गुड का टाइटल होगा, उसी के पास उस गुड का पोजीशन होगा. ठीक है, where the buyer finds that the title of the seller to the goods is defective, he can put an end to the contract. अगर उसको later on, for example, मैंने X से एक सेकेंड हैंड कार खरीदा, ठीक है, मैंने उसको 4 months यूज किया और उसके बाद Z मेरे पास आके बोल रहा है कि ये कार तो चोरी की कार है, X ने चोरी कर लिया था और मुझको बेच दिया था, मतलब मुझको, राइट. सो नाउ ही वांट माय कार बैक. तो वो Z वो मेरा कार लेकर जा सकता है और अब मैं वो X से ये अमाउंट मैं वापस मांग सकती हूँ और आई कैन पुट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सो दिस इज condition as to title. This is one of the implied conditions. Okay, so this kind of example is given here, you can read here. उसके बाद हमारे आते हैं सेल बाय डिस्क्रिप्शन. अब आप एक सेलर के पास गए, उन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया प्रोडक्ट का. फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया ये एक बॉटल है, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस तक आप वाटर बॉइल्ड वाटर आप रख सकते हैं, ये वाटर 7 आवर्स तक गर्म रहेगा, इसमें थर्मोस्टैटिक कंडीशंस है, इसमें ये क्वालिटीज है, XYZ ये है, बहुत कुछ उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया. अब इम्प्लाइड कंडीशन ये है कि अगर जो एक्चुअल प्रोडक्ट में घर आने के बाद मुझे पता चलता है कि वो दोनों का डिस्क्रिप्शन सेम नहीं है, सो नाउ आई हैव दैट राइट to discharge this contract. Okay, so this is about sale of description. Where there is a contract of sale of goods by description, there is an implied condition that goods shall correspond to the description. जो सेलर ने डिस्क्रिप्शन दिया था वही मेरे पास प्रोडक्ट आया है. So this is the implied condition, that is sale by description, which is under section 15. Okay. Goods are sold by description when they are described in contract and the buyer contracts in reliance on that description. जब किसी कोई गुड डिस्क्रिप्शन देकर बेचा जा रहा है तो वो जो बायर है वो उस प्रोडक्ट के उस डिस्क्रिप्शन के रिलायंस में ही वो प्रोडक्ट खरीदता है, राइट. सो अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स any sale in which subject matter is identified by quality, place of origin, mode of packing,
डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, टाइम ऑफ डिस्चार्ज और डिलीवरी नंबर, ब्रांड एक्सेट्रा। मतलब वहां पर अगर डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज 13 जून, बट लेटर ऑन आई फाउंड दैट वो डिफेक्टिव उसने कोई स्टिकर लगा के रखा था, actual date of manufacturing was 9 June. Now this is the implied condition that you have breached the description and now I can discharge this contract of sale. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने LG वॉशिंग मशीन, LG का वॉशिंग मशीन है ये बोलकर उसने आपको प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है, later on you find it is not LG, it is GL. okay, GL का वॉशिंग मशीन है, so now you can discharge that contract. You can go to the seller and say that कि मेरा पैसे वापस कीजिए क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, ठीक है। सेल बाय गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड द फॉलोइंग सिचुएशन। क्या क्या सिचुएशन हो सकता है? फर्स्ट, वेयर द बायर हैज नॉट सीन द गुड्स एंड रिलाइज ऑन द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द सेलर। अगर बायर ने देखा ही नहीं गुड्स को लेकिन डिस्क्रिप्शन पे रिलाई किया, तब भी ये एप्लीकेबल होता है दिस इम्प्लाइड कंडीशन। Next is where the buyer has seen the goods but he realized not on what he has seen but what was stated to him. उसने देखा कि LG का वॉशिंग मशीन लगा हुआ है लेकिन उसने सुना जो डीलर है कि ये उसने देखा था GL का वॉशिंग मशीन है लेकिन जो डीलर है उसने कहा ये LG का वॉशिंग मशीन है, तब भी ये सेल बाय गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन इम्प्लाइड कंडीशन के अंडर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पैकिंग ऑफ गुड्स में समटाइम्स कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन। पैकेजिंग में लिखा हुआ है, पैकेजिंग में डिस्क्राइब किया गया है और फिर लेटर ऑन पता चल रहा है कि वो गलत है, ठीक है, सो दैट इज आल्सो वेयर द बायर कैन एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आते हैं हम अनदर इम्प्लाइड कंडीशंस दैट इज सेल बाय सैंपल। इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप में गए, ड्राई फ्रूट शॉप में गए, जैसे शाबरी बाजार में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के शॉप्स हैं, वहाँ पर आपने डिस्प्ले में देखा, ठीक है, कि बहुत सारे बड़े बड़े साइज के काजू, अखरोट, ठीक है, वॉलनट्स, आलमंड्स, ये सब कुछ डिस्प्ले में है एंड डीलर इज सेइंग कि यही प्रोडक्ट मैं आपको दूंगा, यही सैंपल है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, उम्दा क्वालिटी का सैंपल आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज का है, अच्छे क्वालिटी का है। सो ये ऐसे करके उसने सैंपल दिखाया। सो आप एज अ बायर आपने क्या किया, ठीक है 3 किलो पैक करवा दीजिए। लेकिन आप जब घर आए तब आपने देखा कि जो आपके कैश्यूज थे वो एकदम गंदे क्वालिटी के थे, टूटे हुए थे, छोटे छोटे साइज के थे, एकदम ही मैचेबल सैंपल नहीं था। सो नाउ यू हैव द राइट to end this contract. So a contract for sale is a contract of sale by sample where there is a term in contract is expressed or implied to that effect. In case of contract of sale of by sample, there is an implied condition that the bulk shall correspond to the sample in quality. जो बल्क आपने लेकर आए हैं वो सैंपल के साथ मैच होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो you have breached the implied condition. The buyer shall have the reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. Buyer के पास opportunity होनी चाहिए कि वो sample और bulk को match कर रहे हैं, compare कर रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं, then also it is a breach of implied condition. Next is that the goods shall be free from any defect rendering them unmerchantable. The defect should, however, be apparent on a reasonable examination of the sample. जो गुड्स है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट और वो मर्केंटेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको सैंपल में दिखाया कि ये जो बॉटल है इसका जो कैप है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, सुंदर है, अच्छा है, सब कुछ बेस्ट है, लेकिन आप जब घर आए और जब आप वो सील खोलने गए तो उस सील के खोलने के चक्कर में आपके हाथ से खून निकल गया या फिर मिस हैपनिंग हो गया। सो ये क्या था, मर्केंटेबल गुड्स नहीं था। सो दिस इज अ डिफेक्ट। अगर सैंपल में ये डिफेक्ट नहीं था लेकिन ओरिजिनल में ये डिफेक्ट था, ओरिजिनल जो आप लेकर आए घर पर, जो बल्क में आप सामान लेकर आए उसमें सारे में ही ऐसा डिफेक्ट है, सो देन इट इज अ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, ठीक है। Sale by sample as well
वेल एज डिस्क्रिप्शन। अब हमने इम्प्लाइड कंडीशन में देखा फर्स्ट व्हाट इज टाइटल, ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, थर्ड इज सैंपल। अब फोर्थ में बोथ सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, मतलब जो डीलर है, जो सेलर है, वो सैंपल भी दिखा रहा है, साथ ही साथ वो डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है। दैट इज द इम्प्लाइड कंडीशन दैट द बल्क गुड शैल करस्पॉन्ड with both the sample and the description. When the goods supplied to do correspond only with the sample and not the description or vice versa, this amounts to breach of condition and buyer is entitled to reject the goods. For example, आपने एक दुकान में गए और दुकान वाले ने आपको एक ऑयल दिखाया, ठीक है, कि ये जो ऑयल है वो डिस्क्राइब किया कि बहुत उम्दा क्वालिटी का है, यहाँ से आया है, ऐसे ऐसा है, वैसे वैसे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी डिस्क्राइब किया उन्होंने, और उन्होंने एक सैंपल भी दिखाया जिस सैंपल में वो तेल समझ में आ रहा था। आपके घर आप जब लेकर आए तब आपको वही सैंपल का ही बल्क मिला, ठीक है, लेकिन जो डीलर ने बोला था कि उम्दा क्वालिटी का है वो नहीं था। क्यों? वो कि मिक्स्ड ऑयल था, दो क्वालिटी के ऑयल का मिक्सचर था, लेकिन उसने डिस्क्राइब गलत किया था। सो एज अ रिजल्ट इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों दिखाया गया, उनमें से एक भी कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है सैंपल का विद द बल्क, so this will be result to breach of condition and buyer is entitled to reject the goods. That is implied condition as to quality or fitness. In order to have a check of quality or fitness, ये हर एक buyer की ड्यूटी है to be caveat emptor, मतलब be aware of what you are seeing, ठीक है, मतलब you should be the your eyes and ears should be open when you are purchasing something. आप सब खुद जिम्मेदार है, आप जिस सामान को खरीद रहे हैं आप उसकी खुद जिम्मेदार है। सो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस में यूजुअली ये कहा जाता है कि देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन टू as to quality or fitness for a particular purpose or goods supplied. According to the rule of caveat emptor, it is the duty of the buyer to see and satisfy himself whether the goods purchased will be suitable for his purpose or not. ये एक परचेसर की ड्यूटी है कि वो देखे, वो जांच पड़ताल खुद करे कि जो सामान वो खरीद रहे हैं वो उनके लिए सूटेबल है कि नहीं, उसके पर्पस के लिए सूटेबल है कि नहीं, ठीक है। सो दिस कैवेट एम्प्टर वी विल डू इट लेटर ऑन इन द क्लास, डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी तक आपको ये समझना है कि जब इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस है, फर्स्ट कंडीशन यही है कि इसमें कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं लगता है एज सच, क्योंकि ये कहा जाता है कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आप एज अ परचेसर आप खुद एक सामान की क्वालिटी को चेक करेंगे, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन कुछ किसी चीज में दिस इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस एप्लीकेबल होता है। क्या क्या? जहां पर बायर ने स्पेसिफिकली पर्पस बता दिया है अपना, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि मैंने सिंपली आपको पर्पस बता दिया, मैं जब एक कार खरीदने गई कि मुझे ट्रैवलिंग पर्पस के लिए चाहिए, वो भी हिली रीजन में, राइट। सो अगर मुझे नहीं मिल रहा है वैसी कार, सो दैट इज I have said this is for a particular purpose and they have not keeping that in mind और मुझको उन्होंने दूसरा प्रोडक्ट सेल कर दिया, so that is a breach of contract and that is a breach of implied condition as to fitness or quality, right? अब इसमें भी तीन पार्ट्स आते हैं। There will be breach of implied condition as to quality or fitness of goods for any particular purpose provided the following conditions are satisfied. फर्स्ट, जो बायर है उसने एक्सप्रेसिवली और इम्प्लाइडली बोला हो डीलर को कि मेरा पर्पस क्या है उस गुड्स को खरीदने का। सेकंड, जो बायर है वो जो डीलर है उसके स्किल्स एंड जजमेंट पर रिलाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल केमिस्ट, आप केमिस्ट के शॉप में जाकर आप बोलते हैं कि पैरासीटामोल दीजिए, ठीक है, या फिर कोई XYZ मेडिसिन दीजिए। सो या फिर आप ये बोलते हैं कि फीवर हुआ है, मुझे ये वाला मेडिसिन चाहिए। You are now relying his skill and judgment कि वो जो मेडिसिन देगा वो सही मेडिसिन देगा, ठीक है। The third is the goods are of description which are sold by the seller in ordinary course of business. मतलब उस गुड्स में कोई डिस्क्रिप्शन पहले से ही हो, that makes it a
दिस पर्टिकुलर पर्पस, जहां पर सेलर बायर ने सेलर को बताया है कि देयर इज अ पर्टिकुलर पर्पस, और उसके अलावा भी पर्पस बताने के बावजूद भी अगर सेलर ने दूसरा प्रोडक्ट दिया है, देन इट इज अ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस. The purpose is made known by implications. ये पहला वाला आपने पर्पस एक्सप्रेसिवली बताया, ठीक है. सेकेंड वाले में आपने इम्प्लाइड किया, अपने थ्रू सर्टेन केसेस द पर्पस ऑफ विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड इज इम्प्लाइड इन द आर्टिकल इटसेल्फ, और इट मे बी असर्टेन फ्रॉम द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द आर्टिकल परचेस. जो सामान आपने खरीदा या जिस पर्पस के लिए खरीदा वो इम्प्लाइड है व्हेन यू आर परचेसिंग दैट प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप पेट्रोल खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली आप पेट्रोल गाड़ी चलाने के लिए खरीद रहे हो, राइट. अगर आप मेडिसिन खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी तबीयत खराब है तभी आप मेडिसिन खरीद रहे हो, ठीक है. अगर आपने पर्पस आपके इम्प्लीकेशंस के थ्रू बता दिए, लेकिन अगर सेलर वो इम्प्लीकेशंस को पूरा नहीं कर, वो पर्पस को के अलावा दूसरा कोई प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, देन इट इज अ breach of that implied condition as to quality. ठीक है. In the case law Priest versus Last, P went to L, a retail chemist, and asked for a hot bottle water. He had no knowledge of the hot water bottles and inquired before buying whether the bottle would stand boiling water. अब जो A है, फॉर एग्जाम्पल X एल के पास गया, एक केमिस्ट शॉप के पास, कि उसकी वाइफ के पैर में बहुत दर्द है, तो वो एक हॉट वाटर बॉटल चाहिए उसको ताकि वो सिकाई कर सके, ठीक है. तो उसने पूछा कि ये जो बॉटल आप मुझे दिखा रहे हैं वो क्या बॉइलिंग वाटर को स्टैंड कर सकता है. तो जो केमिस्ट है उसने बोला कि हॉट वाटर को कर सकता है, ठीक है. अब कितना हॉट, क्या हॉट, उसने ही बताया. अब ही बॉट द वाटर बॉटल, अब एक्स वो वाटर बॉटल लेकर आया, लेकिन जैसे उसने पानी डाला, जो कि बॉइलिंग वाटर नहीं था लेकिन बॉइलिंग वाटर से जस्ट थोड़ा सा कम था, वो बॉटल ब्लास्ट कर गया, और दैट मेक्स इंजरी टू एक्स वाइफ्स. So there was a breach of condition as to quality or fitness and seller was liable to buyer for the damages. क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्पस एक्सप्रेसिवली बताया था पी ने, ठीक है. एक्स ने एक्सप्रेसिवली केमिस्ट को बताया था कि ये पर्पस है, मेरे वाइफ के पैर में दर्द हो रहा है तो सिकाई करवाना है, तो ये बॉटल उसने इंक्वायर किया, बट स्टिल उसके पर्पस को फुलफिल नहीं किया और दूसरा वाटर बॉटल उसको शो किया. सो दिस इज ब्रीच ऑफ द इम्प्लाइड कंडीशन, ठीक है. एक्सेप्शंस टू इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू फिटनेस और क्वालिटी. कुछ केसेस में एक्सेप्शंस हो सकता है जहां पर जो गुड्स आप खरीद रहे हैं वो आप सेवरल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है. The buyer must disclose the purpose to the seller for which he requires the goods. Otherwise, the seller will not liable for the breach of implied condition as to quality or fitness. ठीक है. Next is where the goods are sold under patent or trademark. किसी के पेटेंट या ट्रेडमार्क के अंडर आप सेल कर रहे हैं तो वहां पर buyer has not relied on skill or judgment of the seller. For example, अगर आप पैरासीटामोल सेल कर रहे हैं buyer, तो वो एक पेटेंट और ट्रेडमार्क के अंडर है. So यहाँ पर you can't say that you can't rely on the seller's skill and judgment. So the buyer is suffering from an abnormality. ठीक है, buyer ही abnormality से कुछ गुजर रहा है और आपने एक मेडिसिन मांगा, उसकी वजह से आपने बताया नहीं कि मुझे ये abnormality है, मुझे ये प्रॉब्लम है, और आपने वो मेडिसिन कंज्यूम कर लिया. इस केस में भी बायर ही रिस्पॉन्सिबल है, सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि बायर ने तो बताया ही नहीं कि he is suffering from an abnormality. About implied conditions. Now we will go to the implied warranties. Before that, I will take some doubts if you have any relating to implied conditions. Is my screen is not visible? Yes, exam will be in August. Can someone please give me the Google Drive link ताकि मैं यहाँ publish कर दूँ, तो जिसके पास नहीं है वो सेव करके रख सकते हैं. I provide a Google Drive link
जहाँ पर मैं बाकी जो भी मैं क्लास में डिस्कस करती हूँ, जो भी नोट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ, मैं उसी एक पीडीएफ में डालती हूँ, उसी फाइल में पोस्ट करती हूँ, तो यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर. ठीक है शशि, will post after the class. Sales of good act, Kamlesh. I think so it is clear from your side. So now moving to the next topic, that is implied warranties. Okay, implied warranties, अभी आपको समझ में आ गया वारंटी क्या है, which is collateral to the major terms. ठीक है, जो मेजर टर्म्स से कोलेट्रल है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, दैट इज वारंटीज. वारंटीज कैन बी एक्सप्रेस वारंटी एंड इम्प्लाइड वारंटी. एक्सप्रेस वारंटी वो वारंटी होता है जो कि एक्सप्रेसिवली थ्रू ओरल और थ्रू रिटन सेलर बायर को बताते हैं, दैट इज एक्सप्रेस वारंटी. जैसे आपका वारंटी कार्ड व्हेन यू आर परचेसिंग एनी प्रोडक्ट, राइट? सो दैट इज अ एक्सप्रेस वारंटी. अब आते हैं इम्प्लाइड वारंटीज. इम्प्लाइड वारंटीज चार टाइप के इम्प्लाइड वारंटीज होते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. फर्स्ट इज इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन. मतलब आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जब आपके पास उस चीज का पोजीशन आ रहा है, सो यू विल बी द सोल पोजेसर ऑफ दैट एंड यू विल एंजॉय इट क्वाइटली, राइट? मतलब आप कोई दूसरा झंझट नहीं लाना चाहेंगे जब आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं. This means that this warranty is an implied assurance you have given by the buyer that he shall have and enjoy quiet possession of goods without any disturbance from the seller or the third party. If there is a breach of this condition, the buyer can claim damages from the seller. When we are talking about conditions and warranties, दो differences हमने देखा था. क्या जो conditions होते हैं उसमें अगर breach होता है, इधर एक्सप्रेस कंडीशन में या फिर इम्प्लाइड कंडीशन में अगर ब्रीच होता है तो यू कैन डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट. बट अगर इम्प्लाइड या एक्सप्रेस वारंटीज अगर ब्रीच होता है, देन यू कांट डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन ओनली क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम द सेलर. ठीक है, सो दिस अंडर दिस फर्स्ट इम्प्लाइड वारंटी क्या है? ऑफ क्वाइट पोजीशन. क्वाइट पोजीशन मतलब कि मैंने जो सामान खरीदा है, अब कोई थर्ड पार्टी आकर या फिर वही जो सेलर है वो आकर मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा अबाउट दैट प्रोडक्ट. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक खरीदा 30,000 रुपये देकर. अब 2 महीने बाद वो थोड़ा खराब हो गया और मैंने रिपेयरिंग करवाया. सब्सिक्वेंटली जो इसका ट्रू ओनर था, फॉर एग्जांपल जेड, क्योंकि ये चोरी का माल था जो कि मुझे पता नहीं था, वो आया और ये जो मोटर बाइक है वो लेकर चला गया. सो नाउ आई हैव द राइट टू गेट द प्राइस पेड. जो मैंने बाइक के लिए 30,000 रुपये लिए थे वो लेना भी मेरी जिम्मेदारी है, मतलब आई हैव दैट राइट. एंड प्लस जो मैंने जो रिपेयरिंग कॉस्ट उसमें इंकर किया वो भी मैं ले सकती हूँ. किससे? ए से, जिसने ये मोटरसाइकिल मुझको बेचा था, मैं उससे ये रिकवर कर सकती हूँ. आई हैव दैट राइट टू क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम द सेलर. ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन. ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं चोर मार्केट में जाकर सामान खरीदती हूँ, जब वहाँ मुझे पता है कि ये चोरी का ही माल है और कोई आकर मुझसे वो बोलता है कि वो ट्रू ओनर है, फॉर एग्जाम्पल 2 महीने बाद पुलिस आकर बोलती है कि ये चोरी का माल है, ये XYZ का ही इस पर राइट है, तो वो सामान लेकर चला जाता है. अब मेरे पास कोई राइट नहीं है उस चीज डैमेजेस क्लेम करने का. ठीक है, या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का. क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ये चोर मार्केट से खरीदा है. ठीक है, लेकिन जहां पर मेरा नॉलेज में ही नहीं है, मेरे नॉलेज में ही नहीं है कि मैंने जो ये सामान खरीदा है वो चोरी का सामान है, वहां पर मैं डैमेज क्लेम कर सकती हूँ. दैट इज इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन. ठीक है, इज दैट क्लियर? इस टाइप के केस स्टडीज आ जाते हैं कि अगर ये चोर, इफ यू आर परचेसिंग फ्रॉम चोर मार्केट, तब क्या करेंगे. ठीक है, सो ये जो मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ, जस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक, राइट? Implied warranty as to free from liability or encumbrance. Encumbrance means a hindrance or obstacles. ठीक है, इसका simply meaning ये है, unless a contrary intention appears from a circumstances of the case, there is an implied warranty that a good shall be free from any charge or encumbrance or obstacles or hindrances
in favor of any party not declared to the buyer before or at the time of making the contract. अब for example, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने आपको एक मोटर बाइक दिया, ठीक है, और उसके बदले आपने मुझे 10,000 रुपए का लोन दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये प्लेजिंग का है, ठीक है, मैंने मोटर बाइक दिया नहीं, मैंने जस्ट प्लेज किया आपको मेरा मोटर बाइक, एंड इन दैट रिटर्न मैंने आपसे 10,000 रुपीज का लोन लिया, ठीक है। अगले ही दिन जाकर मैंने क्या किया, ये जो प्लेज किया हुआ मोटर बाइक था, ठीक है, अभी भी पोजीशन मेरे पास है, बट मैंने उसको प्लेज किया है आपको, अब वो मैंने किसी और को सेल कर दिया जिसको पता ही नहीं है कि ये जो मोटर बाइक है वो प्लेज्ड है, ठीक है, और मैंने उससे 1 लाख रुपए ले लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको सेल कर दिया वो मोटर बाइक। अब जब वो जो प्लेज का एंड ऑफ द टाइम आया, ठीक है, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में पढ़ा था, और मैंने वो 10,000 वापस नहीं किया, अब ना ही हैज द राइट टू गेट दैट मोटर बाइक और उसको सेल करने का, लेकिन उसको पता चलता है ये तो ऑलरेडी किसी को सेल कर दिया जो कि प्लेज में था, ठीक है। सो नाउ ये जो बी है जिसको मैंने सेल किया है, ही इज अ इनोसेंट बायर, क्योंकि उसको पता नहीं था कि वो जो मोटर बाइक है वो प्लेज्ड है, who has no knowledge of the charge on the motorbike. So now he can discharge the liability or may himself pay the money and then file a suit against me for the property. अब उसके पास जिसको मैंने मोटर बाइक सेल किया था, ठीक है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं था कि ये प्लेजी वाला मोटरसाइकिल है, सो नाउ ही हैज द राइट, क्या कर सकता है, वो जो प्लेजर था उसको वो 10,000 रुपीज लोन वापस करके 10,000 रुपीज अमाउंट मुझसे रिकवर कर सकता है, या फिर वो ये कर सकता है कि वो 10,000 देने के बाद वो सूट फाइल करे, ठीक है, या फिर वो कुछ पे ना करे और वो पूरा ही केस के लिए वो सूट फाइल कर दे इन द कोर्ट, ठीक है। सो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल एट द अदर पर्सन, ठीक है। सो दिस इज अ इम्प्लाइड वारंटी एज टू फ्री फ्रॉम लायबिलिटी और इनकम्बरेंस, ठीक है, कोई ऑब्स्टिकल्स या हिंड्रेंस से जो बायर है he or she should be free, so that is an implied warranty. Warranty as to quality or fitness by usage of trade. Implied warranty as to quality or fitness of a particular purpose may be annexed by usage of trade, ठीक है, मतलब एक चीज से अगर किसी consequence से attached है, so that is an implied warranty. इसको example के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे ऑक्शन सेल होता है, ठीक है, सो ऑक्शन सेल में एक डिस्क्रिमिनेशन होता है कि यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट कि डिक्लेयर करना पड़ता है कि जो गुड्स आप ऑक्शन कर रहे हैं इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द सी, ठीक है, सी के थ्रू ही क्योंकि ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ऑक्शन सेल में ये आपको डिस्क्लेमर करना पड़ता है, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि जो गुड्स आप ऑक्शन में डाल रहे हैं वो इट इज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स ड्यू टू सी, ठीक है। अगर आपने डिस्क्लेमर नहीं दिया, आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो यही माना जाएगा कि वो जो गुड्स आप ऑक्शन में बेच रहे हैं, ऑक्शन कर रहे हैं, दैट इज फ्री फ्रॉम डैमेज फ्रॉम द सी, राइट। सो अब मैंने यही समझ कर, क्योंकि आपने कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया था, आपने ऑप्शन सेल किया, तो मैंने उस बेसिस में मैंने खरीद लिया, ठीक है। अब नाउ आई हैव फाइंड दैट कि आफ्टर परचेसिंग कि वो डैमेज्ड है, ठीक है, सो दैट इज अ इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड, ठीक है। सो दिस इज द इम्प्लाइड वारंटी एंड नाउ आई हैव राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर दिस, ओके। Now next and the last implied warranty is to discharge the dangerous nature of the goods. It is the duty of the seller to warn the buyer about the probable danger, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक केटल खरीद रहे हैं, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर बताने के लिए कि ये डेंजरस नेचर का कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर उसने नहीं बताया है, सो अगर ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह कुछ डैमेजेस होता है बायर को, सो नाउ द सेलर इज लायबल टू पे द डैमेजेस टू द बायर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आप सेलर है, मैं बायर हूँ, आपने मुझे एक इलेक्ट्रिक केटल सेल किया और आपने ये नहीं बताया कि आफ्टर 5 मिनट्स ये ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है।
सो नाउ आई हैव यूज्ड इट और आफ्टर 5 मिनट्स ये ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से मेरे किचन के जो कुछ अप्लायंसेस थे वो खराब हो गए. So now the seller that you is now liable to pay the damages for all that expenses incurred to me. So it is an implied warranty to disclose the dangerous nature of the goods. Okay? So this is all about implied conditions and implied warranty, which is important. Okay? Doctrine of caveat emptor. ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है. ठीक है, दिस इज वेरी सिमिलर टू द इम्प्लाइड कंडीशन. सो मैं ये फिर से रिपीट नहीं करूंगी, सेम चीज ही है, बट मैं आपको एक बार समझा देती हूँ क्या है ये डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर. ये जो केविएट एम्प्टर है, दिस इज मेड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन टर्म्स. ठीक है, दिस डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स. द केविएट मीन्स कॉशन और बी अवेयर, एंड द टर्म एम्प्टर मीन्स परचेसर और द बायर. सो इसका मतलब क्या है? लेट द बायर बिहेवियर. ठीक है, सो आपको एग्जाम में आ सकता है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर. देन यू हैव टू रिमेंबर कि ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट में था, कौन से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, कौन से चैप्टर में था, कौन से टॉपिक है. सो यू हैव टू गेट टू दैट. ठीक है, सो यू हैव टू रीड दीज टर्म्स, और दिस इज वेरी सिमिलर टू द इम्प्लाइड कंडीशंस. ओके, सो इसमें ये कहा गया है कि जो बायर होता है, ही मस्ट एक्ट एज अ थर्ड आई एंड ईयर. उसके आंखें कान सब कुछ खुला होना चाहिए जब वो एक सामान खरीद रहा है. इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू थॉरोली एग्जामिन द गुड्स व्हिच ही इंटेंड्स टू बाय. If the goods turn out to be defective or do not serve his purpose, he cannot blame anybody except himself. अगर उसने पर्पस नहीं बताया है और ऐसे ही खरीद कर लेकर आ गया, तब वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता है. ठीक है, अगर उसने जांच पड़ताल नहीं की और डिफेक्टिव निकला, तब भी वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता है. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू बी द थर्ड आई एंड ईयर, टू बी अवेयर ऑफ व्हाट ही इज परचेसिंग. ठीक है, the seller is under no obligation to reveal the defects in the goods which he may be cognizant. जो सेलर है उसकी ड्यूटी है कि डेंजरस चीजों को डिस्क्लोज करना, लेकिन उसकी ड्यूटी ये नहीं है कि अपने डिफेक्ट माल को वो सेल ना करे. ठीक है, वो डिफेक्टिव माल को सेल कर सकता है unless and until it is very harmful to any person. ठीक है, so it is the duty of the buyer कोई डिफेक्ट्स है या नहीं. There will be no implied undertaking by the seller that he shall supply goods which will suit buyer's purpose. अगर बायर्स ने बायर ने अपना पर्पस ही नहीं बताया है, तो सेलर की कोई ऑब्लिगेशन या कोई ड्यूटी ही नहीं है कि वो बायर के पर्पस को फुलफिल करे. ओके, द रूल ऑफ केविएट एम्प्टर इज एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस. क्या क्या केसेस है जहाँ पर जो सेलर है वो एक्सक्लूसिव डीलर ऑफ गुड्स नहीं है, जहाँ पर बायर ने एग्जामाइन किया है. ठीक है, इन सारी चीजों पर वो ये केसेस एप्लीकेबल है द केविएट एम्प्टर. आपको पूछा जाता है व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर एंड व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस. ठीक है, अब एक्सेप्शन सारे इम्प्लाइड कंडीशंस के जो टर्म्स, इम्प्लाइड कंडीशंस कौन से थे वो सारे आ रहे हैं. जैसे इम्प्लाइड कंडीशंस था क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द बायर्स पर्पस, वही यहाँ पर है. ठीक है, implied condition of description, same. Implied condition of sample, implied condition of sample and description, all the things are same. बस आप एक बार रीड करेंगे, वही एग्जांपल्स के साथ लिखेंगे, सिमिलर थिंग इज देयर. ठीक है, यहाँ पर कुछ एक एक्स्ट्रा टर्म्स है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे गुड्स परचेज बाय मिसरिप्रेजेंटेशन बाय सेलर. ठीक है, अगर जो सेलर है उसने कुछ मिसरिप्रेजेंट कर दिया, कि उसने बोला कि ये थाईलैंड का वॉच है लेकिन ये निकला चाइना का वॉच. ठीक है, सो दिस इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन. नाउ दिस इज द एक्सेप्शन टू द केविएट एम्प्टर. ठीक है, या फिर सेलर ने फ्रॉड किया. ठीक है, सो यहाँ पर भी दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ दैट केविएट डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर. ओके, इसके अलावा आपका गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, यहाँ पर जो गुड्स है दैट शुड बी मर्केंटेबल, मतलब वो बेचने लायक होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके वजह से जो सेलर है, जो बायर है, उसको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है.
इन सच अ वे, फॉर एग्जाम्पल बायर ने एक सैंपल चेक किया या फिर बायर दुकान में गया, उसने देखा सारे बॉटल्स के जो कॉर्क है वो ऐसे ही ओपन होता है, धीरे से ओपन होता है, लेकिन वो जो परचेज करके लेकर आया उस वाले बॉटल का कॉर्क से वो जब ओपन हुआ उसको इतने जोर से सर में लगा, उससे उसका ब्रेन हैमरेज हो गया, राइट? सो दिस इज not comes under the doctrine of caveat emptor. It is an exception to that. That is goods of mercantile quality. Mercantile quality का goods होना चाहिए. Next is wholesomeness of goods. Where provisions and eatables are supplied, the seller has to ensure that they are free from adulteration and opt for human consumption. Otherwise, the rule of caveat emptor will not apply. जहाँ पर जो सामान है वो eatables है, ठीक है, जैसे सब्जी हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, वहां पर ये सेलर की ड्यूटी है कि वो कोई एडल्ट्रेशन ना हुआ करे, मतलब कोई मिलावटी ना हो उसमें, और वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हो. फॉर एग्जांपल एक डेयरी प्रोडक्ट है, वहां पर उसमें सेलर को पता था कि इसमें ऐसा एक वायरस है जिससे टाइफाइड हो जाएगा, तो वो बायर ने कंज्यूम किया और उसको टाइफाइड हो गया, उससे उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है. So as a result, this is not, it is an exception of a caveat emptor, क्योंकि यहाँ पर जो seller है उसने ये ensure नहीं किया कि the goods which he is selling is free from adulteration. तो यहाँ पर the doctrine of caveat emptor does not apply. Okay. It's same as in implied conditions. Implied conditions में भी same था, वही example आपको यहाँ पर लिखना है. Next is consent obtained by fraud. अगर it is seller is under no obligation to reveal the defects in the goods sold to the buyer, but where the seller deliberately conceals a defects in the goods which is not visible on reasonable examination, then the rule of caveat emptor does not apply. For example, आप एक सोफा खरीदने गए और वहां पर आपको दिख ही रहा है कि वो फटा हुआ है और उसका वो, लेकिन सेलर ने बताया कि नहीं ये क्रैक नहीं है, ये टियर्ड नहीं है, ये एक डिजाइन है. तो यहाँ पर उन्होंने एक फ्रॉड किया. दिस इज कंसेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड. सो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ caveat emptor, and here caveat emptor does not apply. Okay, so this is all about the caveat doctrine of caveat emptor and its exceptions. ठीक है, so इससे हमारा conditions, warranties और doctrine of caveat emptor खत्म होता है. अब आते हैं हम एक और न्यू टॉपिक पर. बिफोर दैट, इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट टेल मी. I am providing the questions, practical questions along with this notes. हर notes के end में practical questions है, उससे आप एक बार go through कीजिए. उसमें hints भी लिखा हुआ है, so that will be helpful. ठीक है, I am publishing the Google Drive link. वो आप एक्सेस कर लीजिए, वो आप सेव कर लीजिए. इसी में मैं क्वेश्चंस और ये जो नोट्स है मेरे वो मैं प्रोवाइड कर दूँ. ठीक है. Someone has asked, is it necessary, ma'am, to give example as well as if it is not necessary, will we get the same marks if we don't give the examples? अगर एग्जाम क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स पूछे या ना पूछे, अगर आपको एग्जाम्पल्स पता है तो प्लीज राइट इट डाउन, क्योंकि एग्जाम्पल लिखने से ऑब्वियसली आपके मार्क्स ज्यादा होंगे. ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनी होगी, जो आपके पेपर को जो इवैल्यूएट कर रहा होगा, इवैल्यूएटर को ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि जो लॉ बोरिंग सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है. अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो बोरिंग लगेगा, लेकिन एग्जाम्पल्स केसेस के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको लॉ बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. सो अगर आपने एग्जाम्पल ही नहीं दिया, आपने केस लॉज ही नहीं दिया, तो वो उतना मार्क्स फेच नहीं कर पाता है. सो ऑलवेज ट्राई टू गिव एग्जाम्पल. ठीक है, सारे पॉइंट्स में आप एग्जाम्पल ना दीजिए, लेकिन जिन जिन पॉइंट्स में आपको एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं आप एग्जाम्पल दे सकते हैं. उन पॉइंट्स में एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स में आउट ऑफ 6-7 पॉइंट्स में कम से कम आप एग्जाम्पल देने की कोशिश कीजिए. ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं होंगे, आपके ऑफलाइन एग्जाम्स ही होंगे. एंड दैट इज फ्रॉम अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त. आपकी टेंटेटिव डेट शीट भी आ गया है. डॉक्ट्राइन मीन्स अ प्रिंसिपल. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ दिस caveat emptor. डॉक्ट्राइन मतलब वो प्रिंसिपल होता है, दैट रूल्स, दैट प्रोविजंस, दैट इज डॉक्ट्राइन. ओके ओके, moving to the next topic, we have 10 more minutes. Moving to the next topic, which is also very important, that is
sales of that is sales in under sales of goods act, unpaid seller and his rights. अब unpaid seller को अंडर सेक्शन 45 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत अनपेड सेलर को डिफाइन किया गया है. अनपेड सेलर मतलब जिसको वो सेलर होता है जिसके जो बायर है उसने उसको पूरा अमाउंट, पूरा मॉनेटरी प्राइस दिया नहीं है, या फिर जो क्रेडिट पीरियड है, फॉर एग्जांपल मैं सेलर हूँ, आप बायर हो, ठीक है. मैंने आपको मेरा एक मोबाइल फोन, मैं एक मोबाइल फोन डीलर हूँ, मैंने अपना मोबाइल फोन आपको सेल किया है, ठीक है. और आपने दैट इज अमाउंट टू 50,000 रुपीज और आपने 30,000 रुपीज पे किया और 20,000 रुपीज पे नहीं किया. नाउ ऑल्सो आई एम एन अनपेड सेलर, ठीक है. कुछ भी अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 49,000 आपने पे किया, 1,000 आपने पे नहीं किया, तब भी मैं एक अनपेड सेलर कहलाऊंगी, ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज, अगर मैंने आपको कोई क्रेडिट टर्म दिया है कि फॉर एग्जाम्पल आप ये फोन अभी रख लीजिए, आप मुझे 30 डेज बाद मुझे पैसे दीजिएगा. आपने बोला कि मैं अभी दे नहीं सकता, मैं 30 डेज बाद दूंगा. सो 30 डेज तक मैं अनपेड सेलर नहीं कहलाऊंगी, लेकिन जैसे ही 31st डे होगा उस दिन से मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगी, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट अनपेड सेलर, हु इज एन अनपेड सेलर. According to section 45 subsection 1 of the Sale of Goods Act, the seller of goods is deemed to be an unpaid seller when the whole of price has not been paid or tendered. जब पूरा अमाउंट नहीं पे किया गया या फिर उसका कुछ हिस्सा पे नहीं किया गया. जैसे अगर पूरा 50,000 पे नहीं किया गया था मुझको जब मैंने आपको फोन बेचा, या फिर आपने 1,000 रुपए ही बस पे नहीं किया, 49,000 रुपीज पे कर लिया, और हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई कि वो मैं आपको 49,000 में ही फोन दे रही हूँ. अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई है तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है आपका वो 1,000 रुपीज. सो ऑल्सो आई विल कॉल्ड एज अ अनपेड सेलर. Second thing is when a bill of exchange or a negotiable instrument has been received as a conditional payment but which is subsequently dishonored. कोई bill of exchange आपने दिया था या फिर कोई चेक दिया था, negotiable instrument as a check, और वो बाउंस हो गया, ठीक है, dishonored हो गया. So also I will call as a unpaid seller. The term seller includes any person who is in position of a seller, as for instance an agent of a seller to whom the bill of lading has been endorsed, a consignor or an agent who himself paid or directly responsible for the price. Seller कोई भी हो सकता है, you know that. जब हमने Sales of Goods Act अंडर previous class हमने पढ़ा था, seller कौन कौन हो सकता है. एक agent भी हो सकता है seller का, वो भी unpaid seller हो सकता है. एक consignor भी हो सकता है. So these are the about the unpaid seller, ठीक है. Features क्या है seller के? Sell the goods on cash terms and must be unpaid. Cash terms में पे कर रहा हो, dealings are in cash terms, और कोई कुछ अमाउंट उसका अनपेड रहा हो, ठीक है. नेक्स्ट इज अगर वो क्रेडिट बेसिस पे कर रहा है, ठीक है, जैसे ही वो क्रेडिट बेस पीरियड एक्सपायर हो जाता है तभी से वो अनपेड सेलर कहलाना स्टार्ट करता है. Where he sells the goods on credit basis, he becomes unpaid if the buyer does not pay him the price after the expiry of the credit period or becomes insolvent before the expiry of the credit period. जो 30 दिन का मैंने आपको क्रेडिट पीरियड दिया था कि 30 दिन बाद आप मुझे पे कीजिए, उससे पहले ही अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए तब भी मैं अनपेड सेलर ही कहलाऊंगी. ओके. नेक्स्ट इज ही मस्ट बी अनपेड wholly or partially, which I have discussed. Even if substantial portion of the price has been paid, the seller becomes unpaid seller within the meaning of section 45 of Sales of Goods Act 1930. ठीक है. कोई भी अमाउंट होना चाहिए, होली हो सकता है, पार्शियली हो सकता है, लेकिन अगर कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है, सो दैट मेक्स मी अ अनपेड सेलर. ओके. Price is paid through a negotiable instrument, example bill of exchange, check or PN, and the same has been dishonored, he is an unpaid seller. Where the seller has obtained a decree for the price of the goods and the same has not been satisfied, he is an unpaid seller. जहाँ पर प्राइस नहीं दिया गया, जहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, वो ही अनपेड सेलर हो जाएगा. ठीक है. सेलर इज नॉट अ अनपेड सेलर वेयर बायर टेंडर्स द पेमेंट एंड द सेलर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इट. आपने मुझे 50,000 देने के लिए कहा कि मैं आज ही दे रही हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे आज नहीं चाहिए, आप 30 दिन बाद दीजिए, तब मैं अनपेड सेलर नहीं कहलाऊंगा. ठीक है. जहाँ पर आप देना चाह रहे हैं, बायर देना चाह रहा है और सेलर
एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो बोला नहीं नहीं अभी मुझे नहीं चाहिए, he refuses to accept it, then he is not termed as a unpaid seller. ठीक है, जैसे A sells his Wagoner car for 4 lakh rupees to B on cash terms and B has not paid the price. Suppose B pays 3,50,000 to A. A is an unpaid seller in both the cases where the whole of the price has been not paid and where the part of the price, that is 50,000, has not been paid, which we have discussed, right? Another example is A sells his motorbike to B for 60,000 and receives a check for the price. Subsequently, the check is dishonored and due to insufficiency of funds, A is a unpaid seller. अगर dishonor हो गया है तब भी वो एक unpaid seller होगा, ठीक है? So you can read the subsequent examples of this chapter. The main crux of this chapter, which is important, that is rights or remedies of an unpaid seller. ठीक है? ये जो टेबल है, ये जो चार्ट है, फ्लो चार्ट है, उसको अच्छे से याद कर लीजिए, कौन सा सेक्शन किसके अंडर आता है, क्या आता है। अगर आप सिर्फ ये टेबल भी बना के आएंगे ना तब भी आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएगा आउट ऑफ 15, ठीक है। सो दिस टेबल, दिस फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप बाद में मत पूछिएगा कि कौन से क्वेश्चंस मैम इंपॉर्टेंट हैं, जब मैं क्वेश्चन टॉपिक पढ़ाती हूँ तभी मैं बोलती हूँ कौन से क्वेश्चंस ये आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, हु इज अ अनपेड सेलर एंड व्हाट आर इट्स राइट्स एंड रेमेडीज, ठीक है। देन यू हैव टू मेक दिस फ्लो चार्ट. Rights can be categorized into two terms, that is rights against the goods and right against the buyer personally, ठीक है। goods के against right हो सकता है या right against the buyer personally हो सकता है। आज क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, we will cover only one part of this, ठीक है। बाकी वाले पार्ट हम subsequent classes में पढ़ेंगे। we have next class on Thursday from 11:30 to 12:30, वही हमारा previous time होगा। आज थोड़ी कुछ इमरजेंसी की वजह से I have to shift this time, मैंने आपको थ्रू व्हाट्सएप और इन्फॉर्म कर दिया था अबाउट दिस टाइमिंग्स। सो यस, बाकी रेस्ट ऑफ द क्लासेस हमारे प्रीवियस टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग होंगे, दैट इज 11:30 टू 12:30। बाकी हम इसके पोर्शंस तब कवर करेंगे। आज हम इसका थोड़ा सा पोर्शन कवर करते हैं, दैट इज राइट अगेंस्ट द गुड्स, दैट इज रियल रेमेडीज। इसको रियल रेमेडीज कहा जाता है, जो कि राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली होता है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल रेमेडीज होता है। अब right against the goods is further categorized into where the property in goods have passed and where the property in goods has not been passed, ठीक है। जो सामान खरीदा और गुड्स अभी तक पास हो गया है तब एक केस बनता है, और जहां गुड्स अभी तक पास नहीं हुआ है तब एक केस बनता है, ठीक है। अब जहां हो गया है तब आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, तीन राइट्स होते हैं, राइट इन लाइन इन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल। जब गुड्स आपके पास नहीं होते, where the property in goods has not passed, जब आपने पास नहीं किया है प्रॉपर्टी को, तब you can exercise one right, that is right of withholding the delivery of goods, आप डिलीवरी को रोक सकते हैं, ठीक है। So these are the remedies of unpaid seller, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, रेमेडीज, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। पहले हम पढ़ेंगे where the property in goods has passed, जहाँ पर गुड्स को हमने प्रॉपर्टी पास हो गई है। अब उसमें पहला राइट हमारा क्या आता है, राइट ऑफ लाइन। राइट ऑफ लाइन इन इज द अनपेड सेलर्स राइट टू रिटेन द गुड्स अंटिल होल ऑफ द प्राइस इज पेड और टेंडर। जब तक, जैसे मैंने ये हमारा मोबाइल वाला एग्जांपल करते हैं, जब तक आप मुझे पूरे पैसे वापस नहीं देंगे तब तक मैं आपको तब तक मेरे पास राइट है कि मैं वो जो सामान है उसको रिटेन कर सकूं। द अनपेड सेलर राइट टू रिटेन द गुड्स अंटिल होल ऑफ द प्राइस इज पेड और टेंडर, ठीक है। अब ये राइट ऑफ लाइन कब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, द अनपेड सेलर हु इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द राइट इन द फॉलोइंग केस, जहां पर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट। आपने बताया नहीं कि हमारे बीच में कोई ऐसी वार्तालाप नहीं हुई कि मैं आपको क्रेडिट पर बेच रही हूँ सामान, ठीक है। उस टाइम पर मैं आपको गुड्स सोल्ड किया है विदाउट एनी स्टिपुलेशन, या फिर वो क्रेडिट तब एक्सपायर हो गया, 30 दिन खत्म हो गए, 31st डे है आज, तब मैं ये राइट ऑफ लाइन एक्सरसाइज कर सकती हूँ। और कब मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, तीसरा तब मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ जब बिफोर द क्रेडिट टर्म आप इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। अब अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो मैं राइट ऑफ लाइन अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। अ पर्सन फिर आता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग अनपेड सेलर्स लाइन, ठीक है। सो दिस इज नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट,
reading, ठीक है. The next part, that is section 50 to 52, ठीक है. पहला राइट क्या था? राइट ऑफ लाइन. अब सेकेंड राइट हमारा क्या है? राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट. जो गुड्स आपके से निकल चुका है, जो कि ट्रांजेक्शन में है, कोई थर्ड पार्टी उसको ट्रांसपोर्ट कर रही है बायर तक, तब आपके पास राइट है कि उस गुड्स जो ट्रांजिट में है उसको स्टॉप कर सके, ठीक है. सो दिस इज द मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग? The right of stoppage in transit means the right to stop further transit of the goods while they are with a carrier for a purpose of transmission to the buyer. किसी ट्रांसपोर्ट कैरियर के पास है, इस पर्पस से उसको बायर तक पहुंचाने की पर्पस से. So to resume the possession and to retain them until payment or tender of the price. जब तक आपको पूरा पेमेंट नहीं मिल जाता तब तक आप उसको रिज्यूम कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, ठीक है. Thus, the right is just an extension of the right of lining because it enables the seller to regain possession even when the seller has parted with the portion of goods. आप ये लाइनें से सिमिलैरिटी क्यों है? क्योंकि आप एज अ सेलर यू कैन रिगेन द पोजीशन अगेन, क्योंकि वो ट्रांजिशन में था, अभी तक बायर तक पहुंचा नहीं था. सो आप क्या कर सकते हैं? आप जो आपके कैरियर है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो सेलर से बायर तक पहुंचा रहे थे, उसको बोल सकते हैं आप रुक जाइए, वो सामान उसने अभी तक पैसे पूरे नहीं दिए, आप मुझे वापस कर दीजिए, ठीक है. So you have that right of stoppage of goods in transit in according to the section 50 to 52 under Sales of Goods Act 1930, ठीक है. According to section 50 of the act, the right of stoppage of transit can be exercised by seller subject to the following conditions. क्या क्या conditions हो सकते हैं? The seller must be unpaid either wholly or partially. जो unpaid seller के conditions थे वही conditions यहाँ apply होंगे. तभी जाकर अगर आप अनपेड सेलर है तभी तो आप ये राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट ऑफ लाइन इन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, तभी आप ये सब राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं. आप अनपेड सेलर तब होंगे जब जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो जा रहा है बिफोर पेइंग द फुल पैसा, फुल अमाउंट, ठीक है, ऑफ द गुड्स, या फिर जो द गुड्स मस्ट बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट में होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ये राइट्स ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हैं. He must have parted with a portion of goods. जो सेलर है उसके गोडाउन से उसके पास से चला गया है, वो ट्रांजेक्शन में है, तब आप ये राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट कर सकते हैं. एंड फोर्थ इज द सेलर मस्ट बी अनपेड ईदर होली और पार्शियली, तभी आप अनपेड सेलर कहलाएंगे, ठीक है. सो दिस ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. जो कैरियर है he should not hold the goods as a seller's agent or buyer's agent. वो जो कैरियर है वो सेलर का भी एजेंट नहीं होना चाहिए और बायर का भी एजेंट नहीं होना चाहिए, तब जाकर आप वो राइट ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है. दिस डज नॉट मीन दैट द गुड्स शुड बी इन मोशन एज लॉन्ग एज द गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ द कैरियर, द ट्रांजिट कंटिन्यूज. जरूरी नहीं है वो मूवमेंट में हो. आपने थर्ड पार्टी को बोला था कि वो सामान आप बायर तक पहुंचा दीजिए, अगर वो थर्ड पार्टी के गोडाउन में है तब भी हम उसको ट्रांजिट ही मानेंगे, ठीक है. Reading of these 4 points, similar thing has been written. So we will move to the third rights, that is there is a difference between liner and stoppage in liner. You can just give a reading of that. Third right, the third right is right of resale, ठीक है. अब unpaid seller who has exercised his right of lining or stoppage of goods in transit is also entitled to the third right, that is right of resale. This right is transferred to as resale because there has been already a sale by which the property therein has passed to the buyer. एक ऑलरेडी सेल हो चुका था सेलर एंड बायर के बीच, अब इसको हम रीसेल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो राइट ऑफ लाइन जहाँ पर आपने गुड्स का पोजीशन आपने रख लिया और स्टॉपेज भी कर दिया गुड्स को, इस केस में आप रीसेल भी कर सकते हैं, ठीक है. The unpaid seller can exercise the right of resale in the following circumstances. किस circumstances में आप right of resale कर सकते हैं? जहाँ पर जो goods है वो perishable nature का है, मतलब वो goods 7 दिन बाद खराब हो जाएगा, 3 दिन बाद खराब हो जाएगा, ठीक है, वो perishable nature का है. In that case, no notice is required to be given to the buyer. जिसने अभी तक full amount नहीं पे किया है, उसको आपको notice देने की कोई जरूरत नहीं है. You can just resell that product, okay? क्योंकि उसने अभी तक आपको full payment नहीं दिया है. In next, what is the next condition or circumstances where you can exercise your right of resale under section 54? That is where the unpaid seller gives notice to the buyer. जहाँ पर अनपेड सेलर ने नोटिस दे दिया बायर को कि यार अब मैं तो आपने मुझे प्राइस
पूरा फुल अमाउंट पे तो किया नहीं है, सो नाउ आई कैन सेल दिस। आप अगर 4 दिन के अंदर मुझे पेमेंट नहीं करते तो अब मैं आपको दे देता, मैं वे जो गुड्स है वो मैं रीसेल कर दूंगा। सो where the unpaid seller gives notice to the buyer of his intention to resell the goods and the buyer does not pay any tender or price within the reasonable time, the unpaid seller may resell the goods within a reasonable time. So this is about the another condition circumstances. ठीक है, the right of resale is expressively reserved, मतलब जहाँ पर where the seller has expressively reserved his right of resale in the contract. In case of buyers making default, he can resell the goods even without any notice to buyer. अब मैंने आपको 30 दिन का मोहलत दिया था जब आपको मैंने फोन दिया था और आपने अमाउंट पे किया था। अब फॉर एग्जाम्पल वो गुड्स इन ट्रांजिशन में था, ठीक है, और मैंने आपको ये कहा था कि अगर 20 दिन के अंदर अगर आपने हाफ पेमेंट भी नहीं किया, ठीक है, तो मैं ये गुड्स रीसेल कर दूंगा। अब इस केस में अगर 21 डे हो गया है और आपने अभी तक मुझे हाफ ऑफ द अमाउंट पे नहीं किया है, तो नाउ आई हैव दैट राइट टू रीसेल दिस प्रोडक्ट। ओके, अब हमारे पास अब हमारे ये जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था, where the property in goods has passed, ठीक है, वहां पर हमने 3 राइट्स पढ़ लिए, राइट ऑफ लाइन इन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स एंड राइट ऑफ रीसेल। अब हमारे पास और एक है where the property in goods has not been passed, वहां पर हमारे पास एक और राइट है, दैट इज राइट ऑफ withholding the delivery of goods। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, दैट इज राइट अगेंस्ट द गुड्स। अब हम ये वाला पढ़ लेते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू दिस सूट फॉर प्राइसेस, सूट फॉर डैमेजेस, रिट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट, ठीक है। So what is this right of withholding the delivery of goods under section 56 of subsection 2, where the property in goods has not passed to the buyer in addition to his other remedies, the unpaid seller has a right of withholding delivery similar and coexistent with his rights of line-in and stoppage in transit where the property has passed to buyer। जहाँ पर प्रॉपर्टी पास किया गया है, जहाँ पर वो राइट्स ऑफ लाइन इन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट एक्सरसाइज कर सकता है। सिमिलरली जहाँ पर प्रॉपर्टी अब गुड्स पास नहीं हुआ, वहां पर भी वो सिमिलर राइट्स प्रोसेस कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द राइट्स ऑफ अ अनपेड सेलर अगेंस्ट द पोर्शन ऑफ अ गुड्स, ठीक है। सो एनी डाउट्स टिल नाउ? कॉलेज अलॉट कब होंगे, ये सब आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। If a buyer dies or gets insolvent, ma'am, seller can get his dues from the property of such party. Yes, अगर insolvent हो जाता है तो he has the right to get something from his property, ठीक है। I am not in any WhatsApp group. will be provided, ये जो मैंने पब्लिश किया है लिंक कमलेश, उसमें ही मैंने वो एक गूगल ड्राइव का लिंक है, उसमें मैं सारे नोट्स आफ्टर द क्लास में देती हूँ। सो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर, यू कैन रेफर फ्रॉम देयर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो रेफर टू द स्टडी मटेरियल और एनी बुक विच आई हैव रेफर्ड, ठीक है। It is not so necessary to write all the sections and subsections, but जो एक्ट है आपका, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो कब का है, कौन से ईयर का है। सो 1930 यू हैव टू राइट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का है, यू हैव टू राइट, ठीक है। इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वो कौन से ईयर का है, ये वाली चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो थोड़े मेन डिफिनेशंस है, ट्राई टू रिमेंबर दैट। बाकी सारे सेक्शन, सारे सबसेक्शंस याद रखना उतना जरूरी नहीं है, बट एग्जाम्पल्स और केस लॉस जो मैंने बनाए हैं वो लिखना बहुत जरूरी है अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो, ठीक है। रिमेंबर दैट। बिजनेस लॉस पेपर विल बी ऑफ 75 मार्क्स, फिर उसको वेटेज देकर उसको 100 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है निशा। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी डाउट्स, एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल मी, then you can ask me to the chat box. This is all about
टुडेज क्लास। अभी हम नेक्स्ट क्लास में राइट्स ऑफ अनपेड सेलर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ये 4 डैमेजेस बचे हैं। स्टिल मैं ये जो पीडीएफ है आज के तीनों पीडीएफ्स मैं दे दूंगी। तीनों इसमें से एक पीडीएफ ऑलरेडी मैंने गूगल ड्राइव में दे दिया है, बाकी 2 मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। जस्ट ऑलवेज एक रीडिंग कर लीजिएगा जब भी क्लास हो जाती है, उसके बाद एक रीडिंग कर लीजिएगा तो अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ आप आफ्टर द क्लास एक और बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, तो इससे जो पॉइंट्स जहाँ पर आपको डाउट्स होते हैं वो क्लैरिफाई हो जाता है। और इन दैट केस अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो यू नो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू मेल एंड थ्रू टीम्स ऐप, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। देयर इज नो असाइनमेंट। to get along, ठीक है, to get to disease, so that is decorate, ठीक है। exact meaning you can get from the Google, ठीक है। so I think so that's all for today. We will meet in the next class, that is on Thursday. We will do this the remaining portion of suit and other parts, ठीक है। एक और चीज़ मुझे बोलना था, ये जो हर एक पीडीएफ के एंड में मैंने ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिए, जस्ट गो थ्रू दैट, ठीक है। कभी कभार इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें हिंट्स भी दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन के नीचे हिंट्स दिए हुए हैं। आपके पेपर में 1 या 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड आता ही है। सो जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो आपके सिलेबस में है, उसी के अकॉर्डिंग आप एक बार गो थ्रू कीजिए, उसके हिंट्स देख लीजिए। हिंट्स से ही आपको समझ में आ जाएगा कि किसमें कौन सा आंसर लिखना है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो सिर्फ 3 लाइन में आंसर मत लिख कर आइएगा, जो एक्चुअली जैसे ये वाले क्वेश्चन में अनपेड सेलर के बारे में, तो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट अबाउट ऑल द अनपेड सेलर की जो भी राइट्स एंड रेमेडीज है। जैसे इसमें इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सो यू हैव टू राइट अबाउट दिस राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है। सो दिस इज ऑल, मतलब आपको हिंट से समझ में यहाँ पर दिया गया है ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बाकी यू हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है। हर एक पीडीएफ के एंड में मैंने ये क्वेश्चंस मैंने पुट ऑन किए हैं, सो जस्ट गो थ्रू दैट। ओके, थैंक यू। ओके, आई विल गेट बैक टू यू अबाउट द डिग्री इन सूट इन इंजेक्शन। जब मैं सूट इन इंजेक्शन पढ़ाऊंगी तब आई विल गेट टू दैट, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you, and just go and read well. We will meet on Thursday, same timing, that is 11:30 to 12:30. Okay, thank you.